Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Okay. Almost all the participants have joined, I think. All the participants have joined. Okay. कल मैंने आप बेटा कहा था कि कल मैं आपका थोड़ा सा जो है ना वो टेस्ट करूंगा आपको. नो प्लीज लेट्स स्टार्ट अवर टेस्ट. बी रेडी. What is the section which tells us about annual general meeting? My first question is, what is the section? Section 12. Sir, 12. Section 12. जी ठीक है बेटा. Section 12. आवाज में किसी का माइक ऑन तो नहीं है? प्लीज चेक करें. चलें, ठीक हो गया. बेटा, tell me the section in which registrar has the power to decide certain questions. Sir, section 8. Okay. अच्छा, any one of you tell me what is the section where secretary cooperatives have been defined? अपने exact section Yes, और सब section 3G. Section 3G. Section 3G. G या double G? Sir, double G. Sir, double G. Okay. अच्छा जी. In which section the resource for society has been defined? In which section the resource society has been defined? Sir, section 3, subsection H. Section Sir, 3 section subsection H में 5 सोसाइटीज को डिफाइन किया गया है. Okay, okay. Section 4 deals what? Sir, registrar की, who can appoint the registrar? About registrar, और section 4 है authorities of registrar. चलिए बेटा बताइएगा. Section 7A deals what? Sir, section 7A deal बताता है कि condition of members क्या है. Condition of registration क्या है? Section 7A सर ने पूछा ना. अच्छा, eligibility क्या है? Membership. Condition of जी condition of members क्या है और eligibility क्या है? हाँ, मेंबर बनने के लिए 18 इयर्स है, साउंड माइंड है और solvent ना हो. आपकी तैयारी माशाल्लाह नजर आ रही है कि अच्छी है. अच्छा जी. What is the period in which special general meeting must be called by the registrar? Sir, 1 year. 3 months. नहीं सर, special general. 1.5 अच्छा, special. सर, special general meeting. 1 year होगा सर इसके लिए. सर किसी भी टाइम बुलाई जा सकती है स्पेशल जनरल बुलाई जा सकती है. उसके लिए 1 over 5 मेंबर सोसाइटी के जो हैं उनका एग्री होना जरूरी है सर. रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कभी भी. 1 महीने के अंदर अंदर होता है सर मोस्टली. ये बात आपने ठीक की है. मैंने ओनली I have asked the time period when 1/5 member of the society is required that there should be a meeting.
then meeting may be called within 1 month from their requisition. ठीक है? जी सर ठीक। अच्छा जी। Section 16A deals what? Power of registrar it to deals with change the laws, to amend bylaws of society. Sir, bylaws को amend करने की power है registrar की। This section अच्छा। empowers the registrar to amend the bylaws without society. Okay. Sir, Okay. amend करने No, की बेटा, power। this question is also from the male participants, and I would like their participation also. Now, from the male participants, tell me what section 16A in which the registrar has amended some bylaws, if the party feels aggrieved, what is the period in which party has the right to go to appeal? During 2 Males, months. please, males. During 2 months. 60 days. 60 days. Sir, 2 months. 60 days. बिल्कुल 2 months है, basically not a 60 days, within 2 months. Day may be 61 day भी हो सकते हैं. अच्छा जी, ये भी मेरा क्वेश्चन मेल से ही होगा. They would tell me what section 17A deals. Special member of resource society. जी, special provisions for the membership of a resource society. Now, from all the participants, what section 17B deals? Sir, it is about the Expulsion expulsion of of member. how the members can be removed. Okay. If Expel some करना. member that he has been expelled from the society wrongly, what right he himself has against the others? He can appeal within Secretary 2 months committee. अपील कर सकता है सर वो. Okay, very good. Yes, to sir, the appeal हो सकती secretary है। cooperative. Very Yes, good. sir. Very माशाल्लाह अच्छी तैयारी है, and I am satisfied with your preparation Thank so you, far. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, लेकिन sir. अभी ये Thank you, और sir. वो भी जरा मैंने आपसे पूछनी है थोड़ी सी, ये नहीं कि आपको जब छोड़ दूंगा. लो बेटा, tell me what is section 18A? is general body and जनरल बॉडी और मैनेजिंग कमेटी सर, इसके 5 मेंबर होते हैं और पावर ऑफ मैनेजिंग कमेटी इसमें डिस्कस की है. Sir, क्या power of vote of members. तो सारे okay. बोर्ड का है, जैसे कि मुझे जरा जनरल। बताइएगा कि जो मैनेजर होता है, जो मैनेजिंग कमेटी होती है, उसके जो 5 आपने पार्टिसिपेंट्स बताए हैं, जो 5 मेंबर्स होते हैं, उनका क्या क्या डेजिग्नेशन होता है, मैंने आपको बताया था इसे. सर, क्वेश्चन रिपीट करिएगा. सर एक सदर होता सर, है, एक सदर प्रेसिडेंट होता है, होता है, एक एक बायलॉज को करता है सर. होता है, एक आपके पास सेक्रेटरी की होता है और एक आपके पास 2 मेंबर्स होते हैं। वेरी गुड. सर सदर जी सदर नायब सर, सदर सेक्रेटरी और मेंबर. सर ये और 2 रिपीट Yes, करवा दें. सर ये रिपीट कर दें, ये मैंने मिस किया हुआ आई थिंक ये चीज कि ये सदर नैब डेजिग्नेशंस क्या सदर क्या हैं. सेक्रेटरी और 2 मेंबर्स. सदर नैब सदर Okay. सेक्रेटरी और 2 मेंबर. Section Thank you. 18 is about the election of the managing committee, because society is run by some committee, and this committee is comprised of 5 members, and including those 5 members, first is the president, while the second is the vice president, whereas the third is the secretary, and the remaining 2 are the general members. They are Okay, sir. elected through an election. इनका जो इंतखाब होता है वो इलेक्शन के जरिए होता है, याद रखें. ठीक है. ओके सर. अच्छा बेटा, एक और जरा बताइएगा कि सेक्शन 19 डील, सेक्शन 19 जो है किसको डील करता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर. सर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर. अच्छा, कम से कम कितना पीरियड होना चाहिए किसी शेयर को ट्रांसफर? सर 1 year. 1 ईयर सर. 1 year. 1 year after buying the shares. बिल्कुल ठीक है. चलिए जी, एक और बात बताएं बेटा कि
सेक्शन 20B डील्स विद सर इसके अंदर ये Sir, registrar internal को bound audit किया committee. जाता है, Address हो सर society में जो भी society का। information data है उसके बारे में नहीं, and sir, Anti-Money Laundering Act के Internal बारे में audit. सर आपने Sir, Internal 23 Anti-Money audit Laundering committee. Act के बारे में कि रजिस्ट्रार को बाउंड किया गया है कि वो जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जो भी है सारा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा कि रजिस्ट्रार इज बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेंबर्स, बेनिफिशियल ओनर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज ऑफ द सोसाइटीज, एसेट्स, शेयर्स, उनके एड्रेस, उनके नॉमिनीज, उनकी प्रॉपर्टी और जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है सोसाइटी की, उस तमाम के बारे में रजिस्ट्रार इज बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटीज जो एक्सप्रेस की गई हैं इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। क्लियर? अच्छा बेटा, Yes, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हाउसिंग सोसाइटी होती है कि जब उसने हाउसिंग सोसाइटी ने अपना प्लान वगैरह, लेआउट प्लान वगैरह जो है ना वो सबमिट करवाना होता है, तो उसके लिए जो पीरियड है वो है 1 साल का। उसके लिए सोसाइटी ने एक एनओसी भी लेना होता है फ्रॉम एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट। वो बता सकती हैं आप कि कौन से सेक्शन के तहत उसने जो है ना वो एनवायरमेंटल से जो Sir, एनओसी section लेना? 9 के अकॉर्डिंग सेक्शन सेक्शन 9 में सर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में आपने बताया था ये सेक्शन बेटा, 9 में। आपको सेक्शन 9 का क्वेश्चन तो हम ये समझे। सेक्शन 9 में नहीं आई, सेक्शन 12 में आता है। आपने स्पेशली ये लिखवाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका सेक्शन 12 सर के अंदर सेशन 12 में सर ये सेशन 12 में आता है। मैंने ये बताया था कि नहीं, सेक्शन जो सेक्शन 12 तो जनरल मीटिंग। सर ये एनओसी सेक्शन 12 के अंडर दिया जाता है, लेकिन आपने वैसे बताया था एप्लीकेशन जब रजिस्ट्रेशन की बताई थी उसमें आपने बताया था कि उसमें लेना होता है उन्होंने, लेकिन दिया ये सेक्शन 12 के अंडर जाता ये है। मैंने कहा कि उसने वो कोऑपरेटिव लॉज के तहत ही लेना होता, वो लेना होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, उसके सेक्शन 12 के तहत। क्लियर होगी बात? यस सर। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट Yes, sir. के सेक्शन 12 के तहत। क्लियर? Yes, अच्छा, sir. कल है ना वो आपको थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में बेटा बताया था। हेलो सर आपकी आवाज कम हो गई है, आवाज कम आ रही है, आप रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? ये बीच में डिस्टॉर्शन है बेटा। अच्छा, अब सुने, क्वेश्चन सुने। मेरा सवाल ये है कि जो इंटरनल ऑडिट है वो इज डेल्ट अंडर सेक्शन 22B। अच्छा 22B. how at least how many persons are required? Minimum. सर 3 people। 3 person, minimum 3। minimum 3। ओके, तैयारी आपकी माशाल्लाह जाहिर हो रहा है कि आपकी तैयारी ठीक है। चलिए एक और बात बताएं बेटा कि सेक्शन 21 के तहत कौन कौन सी किताबें जो है ना वो जरूरी है कि सेक्रेटरी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मौजूद हों? Sir, copy of the your act, 1925, copy of the rules 1927, copy of the bylaws of the society और सारे members की up to date record होना चाहिए और एक ऐसा register होना चाहिए जिसमें beneficial owners का भी name हो और अगर secretary के पास information होनी चाहिए अगर कोई information registrar को चाहिए। ओके, Yes, sir, वेरी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो रजिस्ट्रार के पास होना जरूरी है, उसका अलग रजिस्टर रखा जाएगा जो कि रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा लो बेटा, मुझे ये बताओ कि जब रजिस्ट्रार ऑडिट शुरू करता है तो ऑडिट शुरू करते हुए रजिस्ट्रार कौन सी 3 चीजें जो है ना वो लाजमी से चेक करनी होती हैं? Verification of cash, evaluation of assets, liability, overdue. ये सर ओवर डेट है, वेरिफिकेशन ऑफ कैश है कि सोसाइटी के पास कितना कैश है और इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी ऑफ सोसाइटी के मतलब कर्जा जो सोसाइटी के पास ओवरलोड हो, तीनों चीजों को आना जरूरी है। मतलब बिल्कुल इनको ठीक। चेक करते हैं। सर ये वाला प्लीज दोबारा बता दें, ये वाला दोबारा बता देंगे आप एक बार, ये किस सेक्शन में होगा? सेक्शन 22 में है ना, ऑडिट के बारे में बताया गया, ओवरड्यू डेट, वेरिफिकेशन ऑफ कैश, रेवल्यूशन। बेटा मुझे बोलने दीजिए।
Section 22 is about the audit of the society. It is the duty of the registrar to audit himself or get from some of his officers or committee of auditors to audit the societies once in a year. अब during audit what would be examined? 3 चीजें एग्जामिन की जाएंगी. Overdue debt if any. नंबर 2 वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड सिक्योरिटीज. नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. और इन तमाम चीजों के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम तक एक्सेस होगी रजिस्ट्रार की या ऑडिटर की. फिर ये भी मैंने बताया था कि तमाम ऑफिसर सोसाइटी के, तमाम मेंबर, तमाम मैनेजिंग कमेटी, तमाम एम्प्लॉयज वो बाउंड हैं लॉ के जरिए कि तमाम इंफॉर्मेशन जो भी उनसे सॉर्ट की जाए इस सिलसिले में तो वो उसको प्रोवाइड करने के लिए लाजमन वो उसको प्रोवाइड करेंगे. क्लियर? यस सर. और मैंने आगे ये भी बताया था कि अगर एडिटर साहिबान अगर वो देखते हैं कि देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी तो इसकी रिपोर्ट करते हैं रजिस्ट्रार को अंडर सेक्शन 50A. देख लो बेटा. Yes, sir. Sir, confirm है. का जवाब. Your answer is not correct बेटा. सर आपने क्या पूछा है, प्लीज रिपीट करें. मैंने ये पूछा है 22A. यस 22A में रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है. उस रिपोर्ट में सिर्फ रिक्वेस्ट की जाती है कि जनाब आप जो है ना अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें. उन इख्तियारात को जो कौन से सेक्शन में दिए गए हैं आप बताइए. 50A. जी सर. सेक्शन 50A की पावर जो है ना वो आप इख्तियार उसको इस्तेमाल करें. क्लियर? जी सर. जी सर. चलें ठीक हो गया. अच्छा जी भाई मेल पार्टिसिपेंट्स भी जवाब दें. इस सेक्शन 23 डील्स विद Societies to be body corporate. Okay, what it means? सर जब भी कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, मतलब वो एक लीगल पर्सन होती है, तो वो लीगल पर्सन बन जाती है. उसके खिलाफ दावा किया भी जा सकता है और वो दावा कर भी सकती है. Very good. Society can enter into an agreement or contract. Society has its own seal. सील समझते हैं ना, मोहर. ठीक है. अच्छा बेटा जरा मुझे बताइए, ये मेरे पास एक सेक्शन है सेक्शन 27. ये क्या है? जो सेक्शन 27 है वो बताता सर है ये ट्रांसफर ऑफ जो है शेयर्स है. अगर कोई मेंबर मर जाता है तो आफ्टर उसकी डेथ, हाँ ट्रांसफर ऑफ शेयर विद इन. जी. अच्छा जी चले. एक मेंबर सोसाइटी छोड़ गया, उसकी लायबिलिटी कितने अरसे तक बरकरार रहती है? सर 2 years. सर कम से कम 2 साल सेक्शन 28 के मुताबिक. सर ये एटलीस्ट 2 year है या सिंपल 2 years है? सिंपल 2 year. ओके. अच्छा बेटा 29 क्या है? व्हाट इज 29? सर ये बेसिकली 29 सेक्शन ये बताता है कि जो लायबिलिटी ऑफ डिजीज पर्सन है ना वो उसके मतलब वर्सा को कैसे दी जाएगी. सर वो विरासत का. सर सेक्शन 29 लायबिलिटी हो जाए अगर डेथ हो जाए. सर अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है और उसने सोसाइटी से कोई कर्ज वगैरह लिया हुआ था तो उसकी प्रॉपर्टी या उस डिसीज्ड मेंबर की प्रॉपर्टी या वर्से से वो 1 साल के अंदर कवर किया जा सकता है. ये है सेक्शन 29 में. बिल्कुल ठीक जी. तो सर मैंने तो ये कहा था ना कि लायबिलिटी ऑफ डिजीज जो है ना वो उनके वर्सा से रिकवर की जाएगी. अच्छा, तो सर ये क्या गलत है? सर नहीं सर गलत है कि लायबिलिटी ऑफ डिजीज तो बोला था ना कि उसके वर्सा से रिकवर की जाएगी विद इन 1 year. अच्छा ठीक है. तो मुझे सुनने में थोड़ी सी जो ना प्रॉब्लम है. ठीक है
चलें जी, सर well done. सर मेरा क्वेश्चन था, आपने सेक्शन 28 के अंडर बताया था कि एक पास मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 इयर्स तक होगी, तो सर डिजीज की जो लायबिलिटी है वो भी 2 इयर्स तक रहेगी यानी? नहीं, 1 ईयर 1 तक। ईयर 1 ईयर 1 ईयर तक, ठीक है सर। चलें जी, सो फार आपके 30 सेक्शन हो चुके हैं और वेल डन। तमाम का Thank जो है you, ना वो satisfied with your- थैंक यू सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और पूछूं आपसे आज, थोड़ा सा जो है ना आपको थोड़ा सा जो है ना आई वांट टू रिमाइंड योर पास्ट जो है ना मेमोरी। आई हैव टोल्ड यू अबाउट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, व्हाट इज इट? सर इतना याद है कि पाकिस्तान इसका मेंबर था। अच्छा चलें, इसको हिस्ट्री को जो है ना और ऊपर दोबारा सर आपने अमेंडमेंट का बताया सर था कि इसमें अमेंडमेंट के थ्रू जो है अब जो सारे प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स जो हैं इसके अंदर आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है। सर ये मैं बताऊं, सर ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 1995 में मेरे ख्याल से फॉर्म हुई थी। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्या किया था, बेसिकली जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ना, इसको कोऑपरेटिव्स को ना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने के लिए बेसिकली बनाई गई थी। तो ये डिफरेंट सोसाइटीज के साथ रूल्स। जी जी कि पाकिस्तान की एक ही सोसाइटी है which is a member of international cooperative alliance. Do you know the name of that society? नहीं सर, इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो फिर लिख लें आज, कराची एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सर प्लीज रिपीट। कराची एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। This is the only society which is the member of International Cooperative Alliance from Pakistan. सर काइंडली एक दफा रिपीट कर दें। Karachi Employees Cooperative Housing Society. कराची की एक और बड़ी मशहूर सोसाइटी है जो ज्यादातर जो है ना स्कैंडल्स में रहती है, जिसमें जो करप्शन के चार्जेस जो है ना वो टीवी वगैरह भी खबरों में आप देखते रहते हैं। आप नाम बता सकते हैं उसका? बैरियर टाउन सर। नहीं बेटा, बैरियर टाउन इज नॉट ए कोऑपरेटिव। कराची फिशरमैन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कराची फिशरमैन सोसाइटी, सॉरी हाउसिंग नहीं है वो, फिशरमैन सोसाइटी है। लेकिन सर ये खबरों में तो नहीं आती अक्सर। बहुत आती है बेटा, इसके जो अक्सर जो है ना इसके फ्रॉड निकलते रहते हैं, मंजर यहाँ पे आए रहते हैं। पिछले दिनों सिंध हाई कोर्ट ने इसके 3 जो है ना वो ऑफिसर उनको जो है ना वो सजा दी है। सर मुझे सोसाइटी का तो नहीं पता, लेकिन सर वो जो कोई आइलैंड था उसमें जो था ना, पता नहीं बुंदल और पता नहीं क्या कौन सा आइलैंड थे, उसके मैंने पढ़े थे, उनका कोई इशू चल रहा था सर, उसमें भी ये सारी फिशरी के रिलेटेड था सर। वो भी कराची के सिंध you know, this is the society which almost involved in scandalization or corruption. अच्छा अच्छा सर जी, सर मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन था। जी बेटा। सर जी सर, सेक्शन आज मैं 6 पढ़ रही थी ना, तो सर उसके अंदर था कि कोई भी मतलब जो मेंबर है ना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, मतलब वो परचेज करने की 1/5 होनी चाहिए। तो सर उसके अंदर मैंने एक और चीज नोट की हुई थी कि ना ज्यादा से ज्यादा ना हाउसिंग सोसाइटी के ना वो 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता है। तो सर सब ये हाउसिंग सोसाइटी जो शेयर्स हैं वो मैंने जी सर, तो सर ये सारी सोसाइटीज में 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता है या सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी में? हाउसिंग सोसाइटी में बस। ठीक है सर, थैंक यू। सवाल मेरे ज़हन में आया था लेकिन वो उस टाइम पता नहीं क्यों निकल गया, मैंने ये पूछना था आपसे ना। अच्छा सर, वो आप हिस्ट्री के बारे में नहीं पूछेंगे जो आपने हमने शुरू में हिस्ट्री कराई थी, वो 1498 से 1761 से। हिस्ट्री में दोबारा जो है ना आपको हिस्ट्री के ऊपर 2 लेक्चर इंशाल्लाह दूंगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सिर्फ थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ये एक्ट को जो है ना हम जल्दी जल्दी खत्म कर दें, ठीक है? क्योंकि एक्ट में ठीक है सर, थैंक यू। 70 क्वेश्चन आपके एक्ट में से आने हैं, इसलिए तो थोड़ी सी परेशानी मुझे इसकी जो है ना वो है। अच्छा जी, आज जो है ना बेटा मैं सेक्शन 31 शुरू करने वाला हूँ, जरा इसके बारे में जो है ना वेयर इज दिस सेक्शन, यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट, ओनली यू नीड व्हाट दिस सेक्शन इज अबाउट। दिस सेक्शन इज अबाउट admissibility of the copy of entry as evidence। बेटा जो आपने सोसाइटी के जो किताबें मैंने आपको बताई है ना,
जो सेक्शन 20 जो सोसाइटी के पास रजिस्टर्ड मेंबर्स होता है, ठीक है, मैंने को बताया था ना सेक्शन 21 के तहत कि सोसाइटी के पास जो सर्टन रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स रखना लाजमी होता है उसके पास, बताया था ना आपको बेटा? यस सर, कल ही बात हुई थी। अच्छा, सोसाइटी के जो बुक्स है ना, ये बेसिकली 14 किताबें हैं सोसाइटी के पास। कितनी किताबें होती हैं? 14 किताबें सोसाइटी के पास होती हैं, जो जिसमें सोसाइटी के बिजनेस का इंदराज किया जाता है। और इनका जो जिक्र है वो रूल 14 में किया गया है। रूल 14 में आपको पढ़ाऊंगा वो है क्या, लेकिन रूल 14 मैंने आपको सिर्फ बताया थोड़ा सा इस बात में कि जो भी किताबें सोसाइटी के में रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर वगैरह होता है, रजिस्टर्ड कार्रवाई होता है सोसाइटी का, रजिस्टर्ड तमस्कात होता है, ये तमाम रजिस्टर जितने भी हैं इनको एडमिजिबिलिटी है। एडमिजिबिलिटी से मुराद ये है कि किसी भी अदालत में इनको बतौर एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के पेश किया जा सकता है। समझ आ गई ये बात? इस सेक्शन 31 इज अबाउट कि एनी सच एंट्री इन द बुक्स ऑफ द सोसाइटी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए कोर्ट एज एन एविडेंस। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस सर। सर 31 काइंडली रिपीट कर दें, यहाँ आवाज का थोड़ा इशू आ रहा था। अब आवाज क्लियर है बेटा? मेरी तरफ से बड़ी क्लियर है आवाज। नहीं सर, आपकी तरफ से क्लियर है, यहाँ थोड़ा सिग्नल का इशू आ रहा है तो उस वजह से मैं कह रही थी। मैंने अभी इसको मोबाइल डेटा पे कन्वर्ट कर दिया। ओके ओके, देखिए बेटा, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो सेक्शन 31 है, इट इज अबाउट द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द सोसाइटीज, दे आर एडमिजिबल इन एनी कोर्ट एज एन एविडेंस। इनको हम अदालत में बतौर शहादत पेश कर सकते हैं। अदालत जो है ना इनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर मानती है। समझ आ गई बात की? जी सर, समझ आ गई, थैंक यू सर। ये इतनी सी बात है, ये सेक्शन कितना ऐसे नहीं है। अच्छा, अब देखें बेटा, ये सेक्शन नोट कर लें, मुश्किल कोई नहीं है, आसान सा। अब आपके जो ना वो आगे जो 10-12 सेक्शन है बड़े ही इजी हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कोई उसमें जो है ना वो टिपिकल कोई अदाद डिजिट वगैरह नहीं है। सिर्फ आपने सेक्शन के नंबर और सेक्शन के बारे में थोड़ा सा याद करना है कि वो है क्या। बेटा ये जो सेक्शन है याद रखो, ये है सेक्शन 32। इस सेक्शन में ये बात बताई गई है, देखो जो बंदा, जी अब आवाज क्लियर है? मेरी तरफ से तो आवाज डिस्टॉर्शन नहीं है। आप अपने गैजेट को जरा देखें बेटा। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर, आवाज क्लियर है सर। ये इंटरपर्सनल इशू है जो जिसका भी सर उनका कोई ऑडिबल। जी सर, आवाज क्लियर है। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज सेक्शन 32। देखो बेटा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो बंदा आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर सोसाइटी का मेंबर बनने का फायदा क्या है, पूछा था ना एक क्वेश्चन किसी ने। जो बंदा हाउसिंग सोसाइटी में, बताना चाहता हूँ आपके, अगर कोई बंदा हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट वगैरह लेता है तो उसके प्लाट की जो है ना रजिस्ट्रेशन, जिस तरह हम रजिस्ट्री करवाते हैं अदालतों में जाकर, कचहरी उधर तहसील में जाकर पटवारियों के पास रजिस्ट्री करवाते हैं, तो ऐसी रजिस्ट्री की जरूरत कोऑपरेटिव में नहीं होती, क्योंकि कोऑपरेटिव में जो रजिस्ट्री होनी है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास ही रजिस्टर्ड होना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बैंक ने, इन तमाम चीजों ने इस बात की हमें इजाजत दी हुई है कि आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम को रजिस्ट्री करवाना जरूरी नहीं है। समझ आ गई बात की? ये सेक्शन है क्या? ये है एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स ऑफ सोसाइटी, कि वो इंस्ट्रूमेंट जिनका ताल्लुक, इंस्ट्रूमेंट समझते हैं आप? इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट, कि वो दस्तावेज जिनका ताल्लुक सोसाइटी के शेयर वगैरह से हो, डिबेंचर के साथ हो, ऐसी तमाम चीजें जो है ना उनका रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये बात इसमें याद करने वाली कि वो कौन सा लॉ है जिसके तहत डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाने जरूरी नहीं है। वो लॉ है सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। उस कानून की यहाँ कोई जरूरत नहीं है।
वो कानून यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में। क्लियर? सेक्शन क्लियर हो गया बेटा 32? यस सर क्लियर है। अच्छा जी, अगर ये सेक्शन 32 क्लियर है बता दीजिए जरा मुझे। फ्रॉम ईच पार्टिसिपेंट आई वांट टू नो वेदर दे आर क्लियर फ्रॉम दिस सेक्शन और नॉट। सर क्लियर है, क्लियर। जी फ्रॉम मेल पार्टिसिपेंट्स आल्सो? यस सर क्लियर है। यस Okay. सर क्लियर है। Now section 33. This section is about power to exempt from income tax, stamp duty, registration and court fees. अच्छा जरा मुझे मेरी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे बताइए कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन कौन सी गवर्नमेंट दे सकती है, फेडरल या प्रोविंशियल? फेडरल। फेडरल 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 देगी क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करती है ना, एफबीआर। फेडरल जो गवर्नमेंट है वो एग्जेम्पशन देती है फ्रॉम इनकम टैक्स। सोसाइटी के मामलात में सोसाइटी को इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन दी जाती है। कौन सी चीज एग्जेम्पशन देती है? वो फेडरल गवर्नमेंट इसको एग्जेम्पशन देती है अंडर सेक्शन 33 के सोसाइटी के ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स जो है ना वो लागू नहीं होगा। सर सेक्शन 30 अबाउट द एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स है सर। सेक्शन 33 अब इसमें इसके 3 हिस्से हैं बेटा। इनकम टैक्स जो है इसकी एग्जेम्पशन मिलती है फेडरल गवर्नमेंट की जानब से, जबकि स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड कोर्ट फीस इसकी जो एग्जेम्पशन है वो मिलती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानब से। समझ आ गई बात की? नहीं सर मुझे नहीं समझ आई, प्लीज आप इसको रिपीट कर दे, सुनना नहीं है मैंने ध्यान से। अच्छा जी चलें बेटा, जो सेक्शन 33 है मैं ये बात बता रहा था कि सोसाइटी को इनकम टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और कोर्ट फीस इनसे एग्जेम्पशन है। और ये जो एग्जेम्पशन का इख्तियार है इनकम टैक्स के सिलसिले में ये इख्तियार है फेडरल गवर्नमेंट के पास, जबकि स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और कोर्ट फीस इसको एग्जेम्प्ट करने का इख्तियार है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। ये दोनों जो पावर अता की गई हैं वो सेक्शन 33 के तहत हैं। क्लियर होगी बात? यस सर क्लियर है, लेकिन ये स्टैंप ड्यूटी क्या है? स्टैंप ड्यूटी हम बाजार से स्टाम्प खरीदते हैं ना, अदालतों से कोई दस्तावेज लिखनी होती है तो कचहरी में जाकर कहते हैं बयाने हल्फी ले आओ जी 200 रुपए का। यस जी सर, ऐसे बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के वक्त भी लेते हैं। हाँ जी, स्टैंप ड्यूटी जो है ना ये वो ड्यूटी होती है जो गवर्नमेंट के टिपिकल पेपर होते हैं जिनमें गवर्नमेंट के पेपर का मोनोग्राम होता है। वो गवर्नमेंट, हालांकि वो पेपर उतनी मालियत का नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जी हमारा पेपर है, आप इसकी जो है ना इतनी फीस अदा करें। ठीक होगी बात? अब समझ आ गई है स्टैंप ड्यूटी क्या होती है? जी सर। यस सर। हमारा ना LLB में एक स्टैंप एक्ट है, तो लॉ ऑफ स्टाम्प उसे हम कहते हैं। उस लॉ ऑफ स्टाम्प के जरिए जो है ना वो उसको जो है ना ये जो एग्जेम्पशन दी गई है गवर्नमेंट ने। ठीक होगी बात? अच्छा सर एक और सवाल है। अमूमी तौर पर ये होता है कि कुछ ज्यादा मालियत के होते हैं, यानी कुछ 500 वाला होता है, 1000 वाला होता है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि कोर्ट के अंदर एडमिसिबल भी नहीं होते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं, अगर राइट सर, इसमें देयर इज नो टिपिकल वैल्यू और टिपिकल प्राइस हैज बीन मेंशन्ड इन द एक्ट। राइट सर। ठीक होगी बात? सिर्फ इसमें ये जो है ना वो सर ये तीनों सर ये सूबाई हुकूमत के अंडर होंगे। मैंने हाँ जी, जो स्टैंप ड्यूटी होती है, रजिस्ट्रेशन और कोर्ट फीस, ये टिपिकल प्रेरोगेटिव है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, क्योंकि इसके जो पैसे हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ही जाते हैं। जबकि जो इनकम टैक्स है, सुपर टैक्स है, उनके जो पैसे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को जाते हैं। लिहाजा जिस अथॉरिटी के पास पैसे जाने हैं उन पैसों को छोड़ने का इख्तियार भी उसी अथॉरिटी के पास है, उसी गवर्नमेंट के पास है। अब समझ आ गई बात की? जी क्लियर हो गया बेटा? जी सर क्लियर हो गया सर। एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाह रही थी
सर अक्सर स्टैम्प पेपर्स होते हैं, जी सर, अक्सर स्टैम्प पेपर्स होते हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी में जॉब करती थी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिलते थे, तो सर उसके ऊपर लिखा होता था 50 रुपीज स्टैम्प पेपर, लेकिन उसकी प्राइस डिफरेंट होती थी। तो सर ये जो 50 रुपीज और 30 रुपीज ऐसा लिखा होता है, ये स्टैम्प पेपर्स के नाम होते हैं? जी बेटा, वो प्राइस के लिहाज से होते हैं ना, मालियत के लिहाज से। अब देखिए ना, मेरी बात सुने, अगर आपने कोई प्लॉट लिया है, आप सोसाइटी में नहीं लिया, कहीं आपने और प्राइवेट जगह पे लिया है, तो प्लॉट लिया है, तो उसकी कीमत खरीद, उसकी जो रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको सर्टन पेपर्स, मालियत रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। वो जो मालियत है ना बेटा, उस मालियत को जो है ना वो हम वो उसकी जो है ना उसको पे करते हैं। वो मालियत के कागज जो है ना वो खरीदने पड़ते हैं गवर्नमेंट से, फिर उनको जो है ना गवर्नमेंट रजिस्टर करती है। समझ आ गई बात की? जी सर समझ आ गई है। सर मैं ये असल में पूछना चाह रही थी कि उनके ऊपर अक्सर लिखा होता है 50 रुपीज स्टैम्प पेपर, लेकिन उनकी असल में प्राइस जैसे वो 150 का मिल रहा होता है, लिखा ऊपर ये होता है 50 रुपीज स्टैम्प पेपर और मिल 150 200। ये मैं पूछना चाह रही थी, अब आपको मेरी बात समझ आई? सर मेरे साथ तो आज ही ये काम हुआ है, मुझे खुद 200 वाला चाहिए था, मैंने वो 300 में लेके आया हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊं? सर ये ब्लैक में मिलते हैं फिर? नहीं, वो ऐसे ही है ना, वो आज की बात है। मैं आज की बात बता रहा हूँ कि मुझे 200 रुपए वाला स्टैम्प पेपर चाहिए था, वो 300 में दिया उन्होंने। अच्छा ठीक है सर। हाँ, वो जो स्टैम्प पेपर फरोख्त करने वाले होते हैं ना, वो फिर अपने पैसे भी जो है ना वो निकाल लेते हैं उसमें। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, जो सेक्शन है ये सेक्शन 33A। ये बेटा ये बात है इस सेक्शन की कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट वो गारंटी खुद से दे सकती है। किसी सोसाइटी ने लोन जो लिया है, उसकी गारंटी गवर्नमेंट खुद बन सकती है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे। फर्ज करें, पहले मैं आपको बताता हूँ, टिपिकल मिसाल देता हूँ। ये जो हमारी बड़ी बड़ी सोसाइटी है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह है, ये अपने प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये जो है ना स्टेट बैंक से कर्ज भी ले सकती हैं, याद रखें, ठीक है। अब स्टेट बैंक कहती है कि जी हम आपको कर्ज क्यों दें, आपकी गारंटी कौन है? स्टेट बैंक कह सकती है ना, या कोई बड़ा बैंक जो है ना, हबीब बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, उनसे आप कहते हैं जी हमें जो है ना वो 50 करोड़ का कर्ज दें, तो वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक कहता है जी हम आपको कर्ज देते हैं, लेकिन आप गारंटी में हमें क्या देंगे? तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो ये बात की जो है ना वो गारंटी दे सकती है कि जनाब इसकी गारंटी हम देते हैं कि जो है ना ये आपको आपका कर्जा वापस करेगी। गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया गया है कि वो सेक्शन 33A के तहत सोसाइटी के हासिल करदा लोन पर गारंटी दे। समझ आ गई बात की? मुश्किल बात नहीं है इसमें, बड़ी आसान सा सेक्शन है कि गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू गिव गारंटी ऑन द लोन्स टेकन बाय द सोसाइटी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक हो गया बात? वो ऐसा इसलिए होता है, गवर्नमेंट पता क्या करती है, गवर्नमेंट उस सिलसिले में जो है ना एक डिबेंचर जारी कर देती है, एक सर्टिफिकेट जारी कर देती है। वो सर्टिफिकेट जो है ना उसमें लिख देती है गवर्नमेंट कि वी आर रिस्पॉन्सिबल बीइंग ए गवर्नमेंट टू प्रीपे द लोन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेकन बाय द सोसाइटी। जी समझ आ गई होगी ये बात? सेक्शन 33 ये है आपका। यस सर, क्लियर है। चलें, ये चैप्टर आपका जो है ना वो आज 5वां चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब है चैप्टर नंबर 6। जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें बेटा जो है वो है लोन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। सेक्शन 34 है। सेक्शन 34 लोन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन। सोसाइटी रजिस्ट्रार की इजाजत के बगैर किसी को लोन जारी नहीं करेगी, याद रखें, सोसाइटी किसी को लोन जारी नहीं करेगी। और सोसाइटी के ऊपर ये और पाबंदी भी है कि सोसाइटी जो है वो रजिस्ट्रार की इजाजत के बगैर मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी भी वसूल नहीं करेगी। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन समझ आ गई, सेकंड कंडीशन दोबारा बता दें। चले मैं शुरू में दोबारा बताने लगा बेटा।
जो सेक्शन 34 है बेटा, उसमें ये बात बताई गई है कि जो सोसाइटीज हैं ये लोन किसी को जारी नहीं कर सकती मास विदाउट परमिशन फ्रॉम दी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की इजाजत के बगैर ये लोन जारी नहीं कर सकती। दूसरी मैंने ये बात बताई थी कि जो सोसाइटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटी है, कौन सी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटी है बता सकते हैं आप? सर एग्रीकल्चर सोसाइटी, सर तीन रिसोर्स सोसाइटीज हैं। और प्रोड्यूसर के अलावा सारी जो है वो। जी सर, हाउसिंग सर हाउसिंग रिसोर्स सर हाउसिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटी के अलावा बाकी सारी अनलिमिटेड। सारी जो बिल्कुल ठीक है। ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है बेटा कि जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटी होती है वहां पे लोन थोड़ा होता है, ठीक है। उनके ऊपर पाबंदी ये है कि अगर आपने किसी को लोन जारी करना है किसी मेंबर को, तो उसके बदले में सिक्योरिटी मूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं लेनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लेनी है सोसाइटी गारंटी। यानी कि अगर कोई बंदे के पास जमीन होगी, मकान होगा या कोई जायदाद होगी तो उसको मॉर्टगेज करके उसको लोन जारी किया जाएगा। अब समझ आ गई बात की? ये बात है सेक्शन जो सेक्शन 2 है ना इसका 34 का, उसकी बात बताइए। इम्यूवेबल प्रॉपर्टी और इम्यूवेबल प्रॉपर्टी, इसका सर थोड़ा कि save with the sanction of the registrar, a society with unlimited liability shall not lend money on the security of movable property। मैं यही बात बता रहा हूँ बेटा कि मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के ऊपर किसी को लोन जारी नहीं करेगी सोसाइटी। वो सोसाइटी जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है, जो आपने बात बताई है कि जो तीन किस्म की सोसाइटियां वो अपने मेंबरान को अगर लोन देना चाहें तो मेंबरान से कोई ना कोई चीज गारंटी लेनी होती है ना, तो गारंटी मूवेबल प्रॉपर्टी की शक्ल में ना हो, गारंटी हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की शक्ल में हो। अब समझ आ गई बात की? इमूवेबल समझते हैं आप? इमूवेबल क्या होती है? नो सर यही क्वेश्चन किया था सर, ये जमीन वगैरह। ठीक हो गया। देखो बेटा, कोई भी चीज जमीन के साथ जो जुड़ी हुई हो वो इमूवेबल है अनटिल एंड अनलेस वो उससे अलहदा ना कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल घर जो है ना ये इमूवेबल है, जमीन इमूवेबल है, ठीक है, प्लॉट इमूवेबल है। अच्छा, अब कोई दरख्त है, दरख्त वो भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है ना? यस सर। अगर दरख्त को अलहदा कर दिया जाए तो फिर वो मूवेबल बन जाता है, अदरवाइज वो इमूवेबल है। हर वो चीज जो जमीन के साथ जुड़ी हुई है वो इमूवेबल कहलाती है, याद रखें। इमूवेबल कैन नॉट बी स्टोलन, इमूवेबल की चोरी भी नहीं होती। अब समझ आ गई बात की इमूवेबल क्या है? जायदाद गैर मनकूल हरकत न करके जमीन हरकत करती है? नो सर हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं ना कि रियल एस्टेट की टर्म में जो हमारी ना मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना उसके अंदर हमारी क्या आ जाती है, ये वॉल में डिस्टॉर्शन है आपकी बेटा। गाड़ी, कंप्यूटर, ज्वेलरी। कोई सर अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? बेटा ज्वेलरी जो है ना ये मूवेबल है। जी सर, मैं यही बताना चाह रही थी कि जो रियल स्टेट में चीजें आती हैं ना वो हमारी इमूवेबल है, और जैसे जो हमारी गाड़ी वगैरह ये सारी चीजें आती हैं ये हमारी मूवेबल्स। बिल्कुल ठीक है, वेरी ब्यूटीफुली यू हैव आंसर्ड। बिल्कुल ठीक है कि पाबंदी ये लगाई गई है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर उसके इवज किसी को लोन जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और इसी सेक्शन में जो अहम तीन बात है जानने वाली, जिसको आपने लाजमी जानना भी है और याद भी रखना है, वो है सेक्शन 34 का सब सेक्शन 4। वो क्या है? वो सब सेक्शन 4 ये है बेटा कि किसी भी नॉन मेंबर को भी कर्जा दिया जा सकता है। मैंने आपको पहले बताया ना कि मेंबर के अलावा कर्जा किसी को नहीं दिया जाएगा, लेकिन सेक्शन 34 के सब सेक्शन 4 में, इसको लिख लें इस एमसीक्यूज को, सेक्शन 34 ब्रैकेट में सब सेक्शन 4, दिस सेक्शन इज अबाउट that the loan can be given by a society to a non-member, but
with the prior approval from the registrar, रजिस्ट्रार की इजाजत हासिल हो तो रजिस्ट्रार की इजाजत हासिल करके जो है ना वो नॉन मेंबर को कर्जा दिया जा सकता है। इसकी मिसाल देने लगा मैं आपको। इसकी मिसाल ये है कि अगर आप पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक आपके अजला में जो है ना मौजूद है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां आप रिजाइड करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक। आप उस बैंक के पास जाएं कि जनाब मैं मेंबर नहीं हूं लेकिन मुझे कर्जा चाहिए, तो आप मुझे गोल्ड पे जो है ना लोन दे दें या किसी और चीज पे लोन दे दें, तो वो आपको डेफिनेटली जो है ना वो लोन दे देंगे, क्योंकि पंजाब जो हमारा पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है उसको इस बात की इजाजत दी गई है रजिस्ट्रार ने सेक्शन 34 के सब सेक्शन 4 के तहत कि आप जो है ना वो कर्जा जारी कर सकते हैं नॉन मेंबर को भी। ठीक होगी बात? यस सर। ओके, आगे है बेटा सेक्शन 34A, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन है। ये इसको जो नया जो है ना ये सेक्शन जो है ना वो जारी किया गया है, ये अमेंड किया गया था ये 2020 में, ये नई अमेंडमेंट आई है। इस सेक्शन को जो है ना वो इंसर्ट किया गया न्यू सेक्शन 34A 34A। एक्सक्यूज मी सर, जो सोसाइटी के शेयर्स वगैरह होते हैं तो जो सोसाइटी है उसको जो है ना वो आगे ना ट्रांसफर कर सकती है, ना इशू कर सकती है, ना सेल कर सकती है। ये सोसाइटी के ऊपर पाबंदी है। आसान सा सेक्शन है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि सेक्शन 34A इज अबाउट द प्रोहिबिशन ऑन इशुएंस ऑफ ए बेयरर शेयर्स वारंट्स। इनको ना तो वो किसी को अलाट कर सकते हैं, ना इशू कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना इसको जो है ना वो असाइन कर सकते हैं किसी और को। इनकी जो है ना वो ट्रांसफर के ऊपर बिल्कुल पाबंदी है। ये नई पाबंदी जो है ना अब लगाई है FATF की वजह से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वजह से जो है ना वो पाबंदी लगा दी गई है। इस सेक्शन 34A के तहत सोसाइटीज जो है ना वो आर नॉट अलाउड टू अलॉट, टू सेल, टू ट्रांसफर, टू असाइन एनी जो है वो वारंट या बेयरर सर्टिफिकेट्स। ये बेयरर सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है ना ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर आपका ताल्लुक कॉमर्स के साथ है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में ये चेक, इस तरह के जो है ना ये चेक, बॉन्ड, ये तमाम चीजें जो है ना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आती हैं। अगर आपने LL लॉ किया हुआ है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है एक कानून शरह दस्तावेजात, ये बीकॉम वाले भी पढ़ते हैं, कॉमर्स वालों को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है ना नॉलेज लाजमी होती है। ये जो जितने भी इश्यूज हैं, डिबेंचर्स हैं, सर्टिफिकेट हैं, बॉन्ड वगैरह हैं, वो सोसाइटी जारी नहीं कर सकती किसी को। आसान सा सेक्शन है, सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी है कि प्रोहिबिशन ऑन इश्यूएंस ऑफ ए बेयरर शेयर्स वारंट्स, ये है सेक्शन 34A। सर आपने बोला बेयरर सर्टिफिकेट, इसका क्या मतलब सर? हाँ, बेयरर किसे कहते हैं मुझे बताएं? कि जिसके पास कोई सर्टिफिकेट हो, कोई शेयर हो, वो सोसाइटी का मेंबर हो, जिसने सोसाइटी के शेयर परचेज किए हैं ना, बेयरर होते हैं जिसके पास हो। हामल हाजा, आपने चेक के ऊपर नहीं कभी लिखा हुआ देखा कि बेयरर आर द पर्सन, जिसका उसका नाम लिख दें या जिसके पास है वो समझा जाता है कि वो उसी का है। बेयरर लिखा होता है ना, बेयरर, चेक बेयरर वगैरह। अगर आप चेक देखिए, चेक बुक अगर आपके पास है तो अभी निकाल के देखिए, लिखा होता है ना। तो इसमें ये बात है बेटा कि आप जो है ना वो सर्टिफिकेट वगैरह जिस किसी के पास है, सोसाइटी की चीजें हैं, तो वो आगे ना तो बेच सकता है ना ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, पाबंदी है सोसाइटी की तरफ से। लॉ कहता है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। ये नया सेक्शन जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया गया है FATF की वजह से। क्लियर होगी बात? सेक्शन 34A है, आसान सा सेक्शन है। जी सर, 34A में आपने ये बताया कि मेंबर आगे सेल नहीं कर सकता इन शेयर्स को। कोई सोसाइटी नहीं कर सकती, सोसाइटी ना उसका मेंबर, दोनों नहीं कर सकते। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट है बेटा सेक्शन 35। अच्छा, सोसाइटी ने जो हमारी बड़ी बड़ी सोसाइटी है सर, FATF से बना है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो पर्सन को मनी ग्रे लिस्ट में रखा गया था, उस पर्सन को ग्रे लिस्ट में निकालने के लिए FATF ने शर्त लगाई थी कि आपके वो तमाम कवानीन जिसमें मनी ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें कोई जायदाद का लेन देन होता है या जिसमें कारोबार होता है, तो वो असल में ये बात थी कि पैसे के नाजायज इस्तेमाल को जो है रोका जा सके। तो उसके लिए जो है ना बहुत से कवानीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तब्दील किए हैं, उनमें जो है ना वो अमेंडमेंट की गई है। इसी तरह हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट
1925 में भी जो है ना वो 2020 में अमेंडमेंट की गई है अगस्त में FATF की वजह से। ये कब बना धारा सर ये FATF? FATF जो है ना ये आप जनरल नॉलेज वाले से पूछिए बेटा। 1989 में बना। ठीक है जी, ये गालबन 1985 नहीं है कि 1995 सर 1985 सर 1985 है 1985 है। 1989 क्या हो गया? अच्छा चले, ये जो मेरी डोमेन थोड़ा सा आउट है, ये जनरल नॉलेज वालों की डोमेन में आता है जी बेटा। आगे सेक्शन 35, जो बड़े बड़े अदारे हैं उनको लोग ना अतिया जात भी देते हैं, जिस तरह हमारे नहीं ईदी फाउंडेशन को लोग अतिया वगैरह देते हैं। इसी तरह जो सोसाइटी है वो भी दूसरे लोगों से जो है ना वो लोन भी ले सकती थी और अतिया जात भी ले सकती है, लेकिन अब सोसाइटी जो है ना वो रजिस्ट्रार की इजाजत के बगैर किसी नॉन मेंबर से लोन नहीं ले सकती। सोसाइटी खुद तो नॉन मेंबर को लोन दे सकती है, लेकिन सोसाइटी जो है ना वो रजिस्ट्रार की इजाजत के बगैर और उन कंडीशन के तहत जो रजिस्ट्रार तयन कर दे या जिसका जिक्र सोसाइटी के बाई लॉज में हो, तो फिर जो सोसाइटी है वो नॉन मेंबर से खुद लोन हासिल कर सकती है। याद रखें, समझ आ गई ये बात की? मुश्किल तो नहीं है सर प्लीज इसे रिपीट। नॉन मेंबर को सर कर्जा दे सकते हैं लेकिन अतिया नहीं ले सकते। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि नॉन मेंबर को कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन नॉन मेंबर से कर्जा अगर आपने लेना हो ना, सोसाइटी ने एज ए होल सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी है उसने किसी नॉन मेंबर से कर्जा लेना हो, किसी बड़े अदारे से कर्जा लेना हो, तो वो ऐसा नहीं कर सकती कि वो जो है ना वो सोसाइटी जो है ना खुद से जाके ना कर्जा ले ले। सोसाइटी ने सबसे पहले दो चीजें चेक करनी होती हैं। पहली बात तो ये है कि क्या सोसाइटी के बाई लॉज उसको इसकी इजाजत देते हैं। दूसरी बात, क्या सोसाइटी ने इस सिलसिले में रजिस्ट्रार से परमिशन ली है। पता क्यों ये पाबंदी? याद रखें, सुन ले पहले, ये पाबंदी इसलिए है कि सोसाइटी को इलीगल एक्टिविटी से रोका जा सके। ठीक होगी बात? क्यों बेटा, समझ आ गई ये बात की? यस सर, क्लियर जी। आगे बेटा सेक्शन 36, लोन के अलावा ऐसी सोसाइटीज भी हैं जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, नोट कर लें, कंज्यूमर सोसाइटीज, प्रोड्यूसर सोसाइटीज एंड हाउसिंग सोसाइटीज, जहां तक उनके बाईलॉज इजाजत देते हैं, विद द एक्सटेंट ऑफ देयर बाईलॉज कैन हैव ए ट्रेड विद नॉन मेंबर्स। वो नॉन मेंबर के साथ तजारत भी कर सकते हैं, लेन देन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है रिसोर्स सोसाइटी और जनरल सोसाइटी वो ऐसा नहीं कर सकती। तीन सोसाइटियां, कंज्यूमर सोसाइटी, प्रोड्यूसर सोसाइटी, इसमें जो है ना आपको अगर MCQ आया तो ये याद रखें कि वो कौन कौन सी सोसाइटीज हैं which have the power to have a trade with non-members under section 36. They are three societies. नंबर 1 प्रोड्यूसर सोसाइटीज, कंज्यूमर सोसाइटीज एंड हाउसिंग सोसाइटीज। ठीक है, वो भी उस हद तक जिन हद तक उनको उनके बाईलॉज इस बात की इजाजत देते हैं। क्लियर, समझ आती है? क्या ट्रेड टाइप होगी? जी बेटा। सर ट्रेड की टाइप क्या होगी? किस टाइप की ट्रेड कर सकते हैं? बेटा कोई नॉन मेंबर ऐसा कोई ऐसा बंदा है जिससे जो है ना सोसाइटी ने कोई माल सप्लाई करवाए, ईंटें लेनी है, ठीक है, सोसाइटी ने सड़क बनानी है, बजरी लेनी है, ठीक है सर, ठीक है। वो AC लगवाने हैं, AC लगवाने का भी किसी फर्म से जो है ना वो AC लेने हैं। समझ आ गई बात की? यस सर, थैंक यू। इलेक्ट्रिक पोल लेने हैं, इस तरह की चीजें लेनी है, तो वो नॉन मेंबर ही होते हैं ना, उनसे जो है ना ट्रेड कर सकती हैं। ठीक होगी बात? ये बात बताई गई है सर। अंडर टर्म्स एंड रेगुलेशन जो उनके सर बाय लॉज के मुताबिक ही कर सकते हैं ना? जी, बाई लॉज के मुताबिक, बाई लॉज के बगैर नहीं। बेटा देखिए 3 बातें लाजमी हैं। मैंने बताया सबसे पहले एक्ट के बाद आता है रूल्स के बाद आते हैं बाई लॉज।
बाई लॉज रूल्स को सुपरसीड नहीं कर सकते और रूल्स जो है वो एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा बाई लॉज जो मफादात के खिलाफ हो उसको रजिस्ट्रार अमेंड कर सकता है अंडर सेक्शन 16A। आप जरा थोड़ा सा अपने नाले को रिमाइंड करें ना, आप जरा पीछे लेके जाएं तो ये सारी बातें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये जुड़ी हुई हैं बातें आपस में। समझ आ रही है? सर ट्रेड में इसकी इजाजत नहीं होगी, इजाजत नहीं लेनी होगी रजिस्ट्रार से? नहीं, जो बाई लॉज अगर देते हैं ना फिर रजिस्ट्रार से ज्यादा जरूरी नहीं होता। अगर बाई लॉज के अगेंस्ट नहीं जाना, अगर बाई लॉज से बढ़ के है ना तो फिर इजाजत लेनी लाजमी है। तो फिर रजिस्ट्रार से ये भी कहा जाए, रजिस्ट्रार ये भी कह सकता है पहले बाई लॉज अमेंड करो भाई। अब समझ आ गई बात की? ओके सर। देखो ना, अगर बाई लॉज ये कहता है किसी हाउसिंग सोसाइटी को कि आप जो है ना वो किसी जो नॉन मेंबर है उसके साथ आप 2 करोड़ रुपए तक की मालियत का मुआहदा कर सकते हैं, तो अगर सोसाइटी जो है 3 करोड़ की मालियत का मुआहदा करना चाहे तो वो तो फिर नल एंड वाइड हो जाएगा ना, क्योंकि सोसाइटी का जो बाई लॉज है वही इजाजत नहीं देते 2 करोड़ से ज्यादा की। यस सर, ये पॉइंट है। यस, अब क्लियर होगी बात? यस यस सर। जी बेटा, जी 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 बताएं, कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर, क्लियर है। ओके ओके, आगे बेटा सेक्शन 37। दिस सेक्शन इज अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। सोसाइटी जो है ना 5 जगह, अगर सोसाइटी देखें बड़ी बड़ी सोसाइटीज के पास पैसे बहुत होते हैं। हमारे जो बड़े बड़े अदारे हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वापडा हो गया, वैलेंशिया हो गया, लाहौर में एयरपोर्ट रावलपिंडी में हो गया, इस तरह के बड़े बड़े जो अदारे हैं इनके पास बेटा अच्छी खासी रकम होती है, ठीक है, जो इन्होंने अपने मेंबरान से इकट्ठी की हुई होती है। तो अब वो अगर अपने पास रखेंगे तो उस पैसे का फायदा कोई नहीं होना। तो कहा गया है कि आप उस पैसे को यूटिलाइज करें, उससे प्रॉफिट अर्न करें। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सोसाइटी जो है ना वो कहाँ कहाँ डिपॉजिट कर सकती है या इन्वेस्ट कर सकती है उस पैसे को, वो 5 हैं अदारे, 5 जगह है जहाँ पे जो है ना वो सोसाइटी उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। नंबर 1, गवर्नमेंट के सेविंग बैंकों में, जो हमारे नेशनल सेविंग सेंटर वगैरह बनाए गए हैं ना, वहां पे भी पैसे अपने सारे जमा करवा के उसके ऊपर जो है ना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नंबर 2, किसी भी ऐसी जगह पर जिसका जिक्र जो है ना, ये लिखने वाली बात है, इसको आप लिख लें कि किसी भी ऐसा अदारा जिसका जिक्र जो है वो सेक्शन 20 में किया गया है, ट्रस्ट एक्ट 1882 में। ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 20 में बयान किए गए जो अदारे होते हैं उन अदारों में भी जो है ना वो पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। सर प्लीज सब सेक्शन दोबारा बताइएगा इसका 1882 का। बेटा सेक्शन 37 जो है ना, ये मैं ये बात बता रहा हूँ कि इफ द सोसाइटीज हैव सरप्लस फंड्स एंड सोसाइटी वांट टू इन्वेस्ट दोज फंड्स, तो सोसाइटी कैन इन्वेस्ट और डिपॉजिट दोज फंड्स इन द फॉलोइंग वे। वो कौन कौन से है? पहली बात तो ये है, नंबर 1, गवर्नमेंट के सेविंग बैंकों में, जैसे ये हमारे मरकज कौमी बचत वगैरह होते हैं ना, उनमें जो है ना पैसे जमा करवाए जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और दूसरी बात, उन अदारों में जिनका जिक्र जो है ना वो ट्रस्ट एक्ट के दफा 20, ट्रस्ट एक्ट 1882 उसके दफा, ये कानून है ट्रस्ट एक्ट, कानून वक्फ इसे कहते हैं, कानून वक्फ 1882, इसकी दफा 20, इसकी दफा 20 में जिन अदारों का जिक्र किया गया है, फॉर एग्जाम्पल जो है ना बेटा, ये बड़े बड़े खैराती इदारे भी होते हैं और बड़े बड़े जो है चैरिटी हाउसेज भी होते हैं, बड़े बड़े बैंक थे। ये ना अंग्रेजों ने कानून जब बनाया था तो उन्होंने कुछ ऐसे अदारे रखे थे जिनमें आप अगर इन्वेस्ट करते तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ना आपको पैसे दिया करती थी। अब जो है ना वो ट्रस्ट वक्फ इमलाक बोर्ड है, हमारे पास एक वक्फ इमलाक बोर्ड है, उसकी जो है ना जमीन खरीदी जा सकती है। ट्रस्ट एक्ट 1882 ठीक लिखा है आपने। सेक्शन 20, इसका सेक्शन जो है ना वो 20 है। नंबर 3 के ये जो पैसे हैं सर, जी जी हेलो सर, ये जो इन्वेस्ट करती है जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, सोसाइटी के अलावा? सोसाइटी की जो कलेक्टिव अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करना।
सर मैंने देखा है कि वो मैं लाहौर से हूँ, वहाँ यहाँ कैंची एक स्टॉप है, वहाँ पे एक बैंक है, कौमी बचत अदारा, नेशनल सेविंग सेंटर आपने बताया, वहाँ पे अपने पैसे भी देते हैं और मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे उनको वो मतलब प्रॉफिट भी मिलता है। जी जी बेटा, प्राइवेट बंदा भी दे सकता है। मैं तो सोसाइटी के बारे में बता रहा था कि सोसाइटी भी अपने पैसे जो है ना वहाँ पे जमा करवा सकती है। सर एक क्वेश्चन है कि ये सूद कंसीडर होता है? ये बड़ा बेटा टिपिकल क्वेश्चन आपने कर दिया। ठीक है, सर इसके मैं बारे इसके में बारे में कॉन्शियस हूँ, मुझे इसके बारे में जानना है, आप प्लीज थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में? नहीं बेटा, इसके बारे में जो है ना वो मेरे पास जो है ना इसमें जो है ना वो आई एम नॉट दिस टाइम क्लियर कि वेदर जो अर्निंग फ्रॉम द नेशनल सेविंग सेंटर इज विद इन द डोमेन ऑफ इंटरेस्ट और नॉट। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये इसके ऊपर तो ना डिबेट बड़े अरसे से चल रही है बेटा। अभी तक जो है ना हम इस सोल्यूशन के ऊपर आए नहीं है कि कौन कौन सी जो है ना वो चीज सूद है और कौन कौन सी चीज सूद नहीं है। ठीक है ना, ये तो जो है ना वो बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है। इसके ऊपर तो आपको जो है ना वो जो है लॉ रिलेटिंग टू इंटरेस्ट बड़ी बड़ी जो है ना आपको वो कानून मिल जाएगा। तो उसके बारे में जो है ना वो मैं अभी इतना जो है ना वो एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर जो है ना अपनी कोई राय बयान कर सकूं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तीसरी बात ये है बेटा कि कोई प्राइस बॉन्ड। क्वेश्चन मेरा ये है कि ट्रस्ट एक्ट 1882 सेक्शन 20 के तहत कौन से अदारे आते हैं सर इसमें? हाँ, ये मैंने आपको बात बताई है कि बेटा जो गवर्नमेंट, जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी, उन्होंने ना कुछ अदारे बैंकों के अलावा भी बनाए हुए थे। ठीक है, जैसे वक्फ इमलाक बोर्ड है, उसकी प्रॉपर्टी वो फरोख्त करते थे और प्रॉपर्टी जो है ना वो प्रॉपर्टी रहती गवर्नमेंट की तहवील में थी, लेकिन उसका किराया जिसने उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता था उसको जो है ना मिलते थे। लाहौर में अभी भी जो है ना ये वक्फ इमलाक बोर्ड है, ट्रस्ट एक्ट है वहां पे जो है ना, उसमें जो है ना वो प्रॉपर्टी जो है ना वो खरीद कर जिस अदारे ने खरीदनी है वो खरीद लेता है। अब वो जो प्रॉपर्टी वो रहती है तो गवर्नमेंट की है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट वगैरह है वो गवर्नमेंट उसको जो है ना वो पे करती रहती है। और अगर किसी को उसके पैसे चाहिए हो तो वो अपने पैसे जो है ना विद प्रॉफिट वापस भी ले सकता है, नो इशू। पता चल गया? यस। ओके। अच्छा, तीसरा इसमें जो है ना सेक्शन 37 में ये बात है, 37C में, कि जो सोसाइटी है ये किसी दूसरी सोसाइटी के शेयर वगैरह भी खरीद सकती है। ठीक है जी, लेकिन जरूरी है कि वो सोसाइटी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली हो। मसलन जो है ना हाउसिंग सोसाइटी, इसके पास जो है ना वो 5 करोड़ रुपया है, तो अपने वो 5 करोड़ रुपया को जो है ना वो पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक में भी इस्तेमाल कर सकती है, वो किसी और दूसरी सोसाइटी में भी सोसाइटी के नाम पे प्लाट वगैरह जायदाद खरीद सकती है, दुकानें खरीद सकती है। समझ आ गई बात की? मतलब ये है कहने का, उसके शेयर खरीद सकती है 37C का। ठीक है, सोसाइटी में कंपनी आ सकती है? सोसाइटी में जी जी कंपनी से खरीदी जा सकती है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, सर मेरा ये जी सर मेरा क्वेश्चन है कि सर आपने ना 37 में ना 3 पॉइंट लिखाए थे, एक तो गवर्नमेंट सेविंग जो सेंटर्स हैं उनका बताया था, दूसरा आपने वो बताया था एक्ट वाला, जो तीसरा आपने बताया वो शेयर्स का बताया ना। तो सर मैं ये पूछना चाहती थी कि ये सेक्शन के सब सेक्शन ABC है या इसी 37 के अंदर 1 2 3 पॉइंट्स हैं? सर ये काइंडली आप ABC ठीक ही है आपने। चले ये पूछा जा सकता है जो 37C है क्या है। ठीक है ABC है बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। सर 37C पर दोबारा बता दें। जी बेटा, सर 37C में जो आपने पॉइंट बताया था वो रिपीट कर दें। हाँ, उसमें मैंने ये बात बताया था कि सोसाइटी जो है वो एक सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी के शेयर भी खरीद सकती है, किसी कंपनी के शेयर भी खरीद सकती है, नो इशू, प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक होगी बात? 37D, सोसाइटी जो है ना बैंकिंग का कारोबार भी शुरू कर सकती है, किसी बैंकिंग के कारोबार करने वाले इदारे के पास भी अपने पैसे जमा करवा सकती है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक में करवा दे, प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक में करवा दे, किसी भी बैंक में करवा दे। लेकिन बात यह है कि उस जो है ना वो उस बैंक के पास जमा करवाना जरूरी होता है जिसकी इजाजत रजिस्ट्रार ने दी हो। तो रजिस्ट्रार की इजाजत के बगैर जो है ना वो कोई काम नहीं किया जा सकता, याद रखें सोसाइटी में। ठीक है। 37E क्या है?
इन एनी अदर मोड परमिटेड बाय द रूल्स, सोसाइटी के रूल अगर किसी और तरीके की इजाजत दें तो उसमें भी जो है ना इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अब वो सोसाइटी चाहती है कि हमारे पास बसें नहीं है, हम बसें खरीद लेते हैं, उन बसों को जो है ना वो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए बना लेते हैं, फिर उससे पैसे हम करेंगे, तो सोसाइटी ऐसा भी कर सकती है। क्लियर होगी बात? यस सर, क्लियर है। 37 सेक्शन। यस सर, क्लियर है। अच्छा जी सर, ये जैसे मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन इन्होंने अपनी बसेस और वैन्स वगैरह भी निकाली हुई जो सिर्फ मॉडल टाउन के अंदर ही सर्व करती हैं। हाँ, अगर वो बाहर भी करना चाहे तो नो इशू। नहीं सर, उन्होंने देखा है कि वो सिर्फ बाहर का एक स्टॉप लेती हैं और अंदर सिर्फ मॉडल टाउन के अंदर तक सिर्फ सोसाइटी के अंदर ही होती है वो। हाँ ठीक है, तो वो जो है ना वो तो उन्होंने अपनी, क्योंकि मॉडल टाउन इज आल्सो कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको पता है ना, मॉडल टाउन इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके सर। जो मॉडल टाउन में सेक्शन 37E है। जी 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 37। जो मॉडल टाउन है वहां पे जो सेक्रेटरी मॉडल टाउन होता है वो बेटा सीआर लेवल का ऑफिसर होता है, ग्रेड 18 का। ओके सर। अच्छा जी, अब है बेटा सेक्शन 38। मैंने जो ना ये चैप्टर आज खत्म करना है, इसके जो है ना 42 सेक्शन है, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। सेक्शन जो है ना वो 38। इसमें देखें, एक होता है डिविडेंड, एक होता है प्रॉफिट। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड प्रॉफिट? हाँ सर। कॉमर्स वाले कोई बता सकता है बेटा आप में से, जो बच्चे ने कॉमर्स पढ़ी हुई है? नहीं? देखिए, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो शेयर खरीदते हैं। सोसाइटी उन शेयर्स में जो पैसे अर्न होते हैं उसको जो है ना इन्वेस्ट कर देती है। अब जरा पिछले सेक्शन को दोहराएं, आप 37 को दोहरा रहे हैं, 37 को सेक्शन को। 37 सेक्शन ऐसा कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स है। जब फंड को इन्वेस्ट करना है तो वहां से प्रॉफिट वगैरह भी तो आना है ना, कि नहीं आना? आना है ना? यस सर। बताइए आ गई है। यस सर। डिविडेंड मींस वो प्रॉफिट होता है जो शेयर्स पे अदा करते हैं हम। प्रॉफिट विच इज गिवन ऑन शेयर्स इज नोन एज डिविडेंड। याद रखें, प्रॉफिट विच इज गिवन ऑन शेयर्स इज नोन एज डिविडेंड। हाउसिंग, बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी और बैंक का कारोबार करने वाली हमारी पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, ये जो है इनके अलावा जितनी सोसाइटियां हैं, रिसोर्स हो गया, जनरल हो गया, कंज्यूमर हो गया, ये अपने मेंबरान को 10% से ज्यादा जो है ना वो प्रॉफिट नहीं देंगे। 10% से ज्यादा डिविडेंड जो है ना अपने मेंबरान में तकसीम नहीं करेंगे। समझ आ गई है बात की? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कितना रेट है। रेट जो है ना वो है 10%। किन के लिए है? 3 के अलावा। वो 3 कौन से हैं मैंने को बता दिया है, प्रोड्यूसर, हाउसिंग और बैंक। बैंक से मतलब पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। उस बैंक के अलावा जो बकाया सोसाइटी है वो अपने शेयर्स पे अपने मेंबरान को 10% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे। ठीक होगी बात? मुश्किल नहीं है, इजी बात है। और सर जो हाउसिंग और बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटी के लिए, इसके लिए क्या परसेंटेज होगी सर? वो आगे आएगी बात, आपने तो टू अर्ली कर दिया क्वेश्चन, आगे आएगी। आगे यही है सेक्शन 38 का जो 2 है ना सब सेक्शन, उसमें यही बात है कि वो 20% से ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है जी? यस। 10%, नॉट मोर देन 10%, ये है उन सोसाइटी के लिए जो हाउसिंग, बैंकिंग और प्रोड्यूसर इनके अलावा है। जबकि हाउसिंग, बैंकिंग और प्रोड्यूसर ये जो 3 हैं ये 20% से ज्यादा जो है ना डिविडेंड नहीं देंगे। आसान सी बात है कि कौन सी सोसाइटियां मैंने को बता दी हैं, अलग-अलग बता दी है कि हाउसिंग,
बैंकिंग, प्रोड्यूसर, ये 20%, जबकि बकाया जो है ना वो 10%। इससे ज्यादा जो है ना वो प्रॉफिट एज ए डिविडेंड जो है ना वो अपने मेंबरान में नहीं दिया जाएगा। नहीं सर, आपने मिक्स कर दिया है। पहले आपने हाउसिंग, प्रोड्यूसर और पंजाब बैंक का 10% बताया है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैंने अदर देन कहा है, आपने सुना नहीं फिर गौर से बेटा। रिसोर्स sir, आपने other कंज्यूमर और than जनरल कहा। के लिए बताया सर ने, रिसोर्स कंज्यूमर और जनरल के। हाँ, मैंने ओके यही बात ओके। बताई बेटा। मैं कहा इन तीनों के अलावा जो आपने बात की है ना बेटा कि हाउसिंग, प्रोड्यूसर और बैंकिंग, इन तीनों के अलावा जितनी भी सोसाइटियां हैं वो अपने मेंबरान्स में एज ए डिविडेंड जो है ना वो 10% से ज्यादा नहीं दे सकती, जबकि हाउसिंग, प्रोड्यूसर और बैंकिंग ये 20% से ज्यादा जो है ना वो डिविडेंड नहीं पे कर सकती। अब समझ आ गई बात की? यस सर, आ ये गई है। एमसीक्यू लिहाज से ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 38 भी, अगले वाला 39 भी। 39 वाला क्या है? आसान है, मुश्किल नहीं है, सेक्शन छोटा सा ही है, इतना उसमें इतनी के समझने वाली चीज नहीं है। वो ये है कि देखें, याद रखें बेटा कि जो सेक्शन 39 है वो है क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिजर्व फंड इज क्रिएटेड अंडर व्हाट सेक्शन? सेक्शन 39। सर थोड़ी सर सेक्शन 39 जरा प्लीज बता दें, वो मेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने सुना ही नहीं है सर, यहाँ सिग्नल्स का बहुत इशू है। जी जी, सेक्शन 39। सेक्शन 39 कि सेक्शन 39 इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड। एवरी सोसाइटी हर सोसाइटी के लिए लाजमी है कि सोसाइटी मस्ट मेंटेन अ रिजर्व फंड, वो रिजर्व फंड मेंटेन करे। अब रिजर्व फंड के लिए कितना सरमाया होना चाहिए? याद रखो बेटा, जो प्रॉफिट सोसाइटी अर्न करती है उस प्रॉफिट का 1/4 कितना होना चाहिए? 1/4। कौन सी सोसाइटी है? ये भी यहाँ पे भी जो है ना वो बात आपकी जो है ना वो यहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मुश्किल इसको आपको समझना होगा कि वो 2 सोसाइटियां ऐसी हैं जिनके ऊपर पाबंदी है कि वो लाजमन 1/4 जो है ना अपने नेट प्रॉफिट का वो एज ए रिजर्व फंड रखेंगी। कौन कौन सी सोसाइटी हैं वो 2? वो एक है रिसोर्स सोसाइटी, लिख लें, दूसरी है प्रोड्यूसर सोसाइटी। इन दोनों सोसाइटी के ऊपर पाबंदी है कि दे मस्ट मेंटेन 1/4 ऑफ देयर नेट प्रॉफिट एज ए रिजर्व फंड। आसान सी वर्डिंग में समझा रहा हूं बेटा आपको कि सेक्शन 39 इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड। सिमिलरली सेक्शन 39(2) says that resource society and producer society must maintain 1/4 of their net profit as a reserve fund, whereas रिजर्व फंड का बता दें सर, इसको सेविंग कह सकते हैं? जी सेविंग कह सकते हैं। रिजर्व फंड एक ऐसी अमाउंट होती है जिसको लाजमन आपने इसलिए रखना होता है ताकि सोसाइटी को बाद ऐसे जो नुकसानात का सामना हो सकता है जिसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए इन हैंड, ताकि आप उन पैसों को जो है इस्तेमाल कर सके। ठीक है, एक बंदा है, फर्ज करें, मेरी बात सुने, समझ लेने पहले। एक बंदा जिम्मेदार है, उसने कर्जा लिया रिसोर्स सोसाइटी से। वो अल्लाह ना करे जिम्मेदार को जब कर्जा वापस करना था उसकी जो है ना वो भैंसें भी मारी गई, उसके जो है ना वो फसल भी तबाह हो गई, तूफान आ गया, सैलाब आ गया, अब वो बेचारा रोड पे आ गया। अब वो पैसे तो नहीं पे कर सकता, लोन तो नहीं पे कर सकता, लेकिन सोसाइटी ने चूंकि बैंक से लोन लिया हुआ है, सोसाइटी ने पे करना ही करना है, तो सोसाइटी ने अपने इस रिजर्व फंड से जो है ना वो पे करना है। समझ आ गई ये बात की? यस सर। क्लियर होगी बात? सर थैंक जी सर, थैंक यू सर। जी सर क्लियर, थैंक यू। अब बेटा इसका जो है ना इसी सेक्शन का दूसरा हिस्सा भी है 39(2) का। मैंने को बताया कि देयर आर 2 सोसाइटीज के 39 सब सेक्शन 2 है बेटा। 39(2) जो 39(2) है इसके भी 2 पार्ट है। पहले पार्ट में कहा गया है कि रिसोर्स सोसाइटीज एंड प्रोड्यूसर सोसाइटीज मस्ट मेंटेन 1/4 ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट एज ए रिजर्व फंड, while other than these two जितनी भी सोसाइटी हैं इन दोनों के अलावा हाउसिंग, कंज्यूमर
जनरल सोसाइटी, बैंकिंग सोसाइटी, उनके लिए कहा गया है कि 1/10 1/10। पहली के लिए कितना है 1/4, और इन दोनों के अलावा जितनी भी सोसाइटी हैं उनके लिए कितना है 1/10, कि वो अपने नेट प्रॉफिट का 1/10 बतौर रिजर्व फंड जो है ना उसको इस्तेमाल रखेंगे, उसको रिजर्व फंड की जो है ना क्रिएशन होगी। समझ आ गई है बात की बेटा? यस सर। अच्छा जी, ये कौन सा अब मैं होगा बेटा सर? ये 39B होगा? जी 39(2) है, ये 2 में ये बात है, दोनों 2 में ये बातें मैंने आपको 39(2) को जो है ना वो डिवाइड करके बता दिया है, उसको मजीद मैंने एलेबोरेट कर दिया है। मुझे ना इसका ये बोर्ड वगैरह जो वर्चुअल बोर्ड है मुझे वो इस्तेमाल नहीं करना होता, अगर वो मुझे इस्तेमाल करना होता फिर मैं आपको लिख के बता देता क्या कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं बेटा कर रहा हूँ आई पैड पे ना, तो मुझे इसका जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करना आता। सर मैं एक सवाल कर लूं? सर मुझे थोड़ी देर पहले ना आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं एक चीज कंफर्म करना चाह रही हूँ कि सर जो आपने सेक्शन 38 बताया था उसका कोई सब सेक्शन तो नहीं है ना? क्योंकि सर उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी 39 तक। 39 तो आपने रिपीट सब सेक्शन नहीं, वो नहीं मैंने बताया था, मैंने सिर्फ ये बात बताई 38 में कि जो है ना वो डिविडेंड के ऊपर जो है ना पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन है बेटा, उसमें ये मैंने ये बात बताई थी कि सर वो मैंने नोट कर लिया था डिविडेंड का, सर वो डिविडेंड वाला सारा मैंने नोट कर लिया, तो उसके बाद आवाज नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा शायद कुछ उसमें आपने। उसके बाद मैंने सेक्शन 39 बताया था। सेक्शन 39 में मैंने ये बात बताई थी कि सोसाइटीज मस्ट मेंटेन और क्रिएट अ रिजर्व फंड। अब कौन जी सर, ये जी सर ये भी मैंने नोट जी उसका जिक्र जो है सेक्शन 32 में किया गया है। सेक्शन 39(2) में कहा गया है कि रिसोर्स एंड प्रोड्यूसर सोसाइटीज मस्ट have 1/4 of their net profit as a reserve fund, whereas other than these two societies 1/10। इन दोनों के अलावा जितनी भी सोसाइटी हैं उनने 1/10 जो है ना अपने नेट प्रॉफिट का रिजर्व फंड में रखना है। और मैंने आपको बता दी थी रिजर्व फंड क्यों जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ये 37E किसने कहा है बेटा? 37E तो मैंने ये बात बताई थी कि वो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड है। मैंने को बताया था इन एनी अदर मोड परमिटेड बाय द रूल्स। मैंने उसमें ये मिसाल दी थी कि बड़ा अदारा है वो चाहता है कि हम बसें ले लें, ठीक है, तो वो रूल्स के तहत बसें खरीद सकते हैं, फिर बसों को जो है ना पब्लिक इस्तेमाल के लिए भी जो है ना पब्लिक में वो उसको चलाकर उससे जो है ना प्रॉफिट वगैरह जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। ये मैंने बात बताई थी आपको 37E में। 39 का पता चल गया है। अब मैं सेक्शन 40 जो है ना वो पढ़ने लगा हूँ क्योंकि मैंने 42 तक आज जो है खत्म करने हैं आज। जी सर। दिस इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको डिविडेंड और प्रॉफिट में फर्क बताया थोड़ा सा। यस। कि डिविडेंड इज द प्रॉफिट व्हिच इज गिवन ऑन शेयर। इसके अलावा जो प्रॉफिट है वो जो पैसे आपने रखे हुए हैं रिजर्व, जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो भी आपने तकसीम करना होता है अपने मेंबरान में। जी सर, बेसिकली डिविडेंड होता ही पार्ट प्रॉफिट का है। तो जो प्रॉफिट जो हम क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं ना, उसके बाद जो शेयर्स के ऊपर अमाउंट हम देते हैं शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम एज डिविडेंड डिफाइन करते हैं। बिल्कुल जो शेयर होल्डर्स के अलावा होते हैं ना बेटा वो प्रॉफिट होता है, याद रखो। आसान से लफ्जों में इसको समझें, ठीक है, कि डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स व्हाइल तमाम अदर्स के लिए। देखो मैंने को बताया कंज्यूमर सोसाइटी आपको बताई थी, कंज्यूमर सोसाइटी। जी सर बताई थी। हाँ ठीक है। सेक्शन 3 मैंने को बताया था, सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो डेफिनेशन दी गई हैं वो साथ जुड़ी हुई हैं इन तमाम सेक्शनों के, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो है ना वो लॉ में हमेशा उसके कई जो सेक्शंस होते हैं उन्हीं में डिस्कस की जाती है। जो जिस बंदे को, जिस स्टूडेंट्स को, जिस उस तालिब इल्म को वो टर्मिनोलॉजी का पता चल जाए तो फिर वो आने वाले जो हालात हैं, आने वाला जो नॉलेज होता है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड जो है ना वो कर लेता है। ये जो सोसाइटीज होती है ये प्रॉफिट वगैरह जो है ना ये भी तकसीम करती हैं। कैसे तकसीम करती हैं? इसके लिए कहा गया है, याद रखो एक ही बात है, बात ये है कि 10 साल से पहले प्रॉफिट तकसीम नहीं होता, ये पाबंदी याद रखें।
प्रॉफिट की शरह शुरा जो है ना वो कोई नहीं दी गई इसमें। प्रॉफिट की शरह बयान नहीं की गई, वो जुडिशियस शरह है। जुडिशियस से मुराद है जो मुंसफाना तरीकाकार है, जिसका जितना बनता है उसको उतना ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये शर्त लगा दी गई है कि 10 साल से पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आपने यही याद रखना है इसमें एक एमसीक्यू कि सेक्शन 40 में ये रिस्ट्रिक्शन है कि प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अमंग द मेंबर्स और नॉन मेंबर्स अनटिल द पीरियड ऑफ लैप्स ऑफ 10 ईयर, जब तक 10 साल ना गुजर जाएं। सोसाइटी की जो रजिस्टर्ड हुई है उस सोसाइटी को बने हुए 10 साल ना गुजर जाएं, उसका प्रॉफिट जो है ना तकसीम नहीं हो सकता। ये बात याद रखें बस सेक्शन 40 में, ठीक है। समझ आ गई बात की? सर ये ऑल सोसाइटी के लिए होगा ना? जी सर ये सारी सोसाइटियों के लिए होगा ना? यस यस यस, इट इज फॉर ऑल दी सोसाइटी। आगे है आसान सा सेक्शन, इसको सिर्फ आप इतना याद रखना है कि प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंटिल द पीरियड ऑफ 10 ईयर, ठीक है। 10 साल का अरसा ना गुजर जाए सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन हुए सोसाइटी को बने हुए, ठीक है। समझ आ गई बात की? यस सर, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट करके 10 साल के लिए भूल जाए बंदा पैसे को। जी 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 ऐसे ही होता है। अच्छा आगे है बेटा सेक्शन 41, ये है प्रोविडेंट फंड। क्या है ये? प्रोविडेंट फंड। ये बेटा प्रोविडेंट फंड, ये बात बताई गई है कि सोसाइटी जो है वो प्रोविडेंट फंड का जो है ना वो कायम कर सकती है। प्रोविडेंट फंड क्यों होता है यार बताइए जरा। ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए हर मतलब ऑर्गेनाइजेशन करती है, उसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो एम्प्लॉयज हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के मेंबर्स के अलावा देयर आर सर्टेन एम्प्लॉयज हु आर इन्वॉल्व्ड विद द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। देयर ड्यूटी इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द सोसाइटीज, टू कीप द सोसाइटीज फंक्शनिंग स्मूथली। उनकी जो है ना वो सोसाइटी के मुलाजिम समझे जाते हैं। जब वो सोसाइटी के मुलाजिम समझे जाते हैं तो उनमें प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया जाता है। तो प्रोविडेंट फंड जो है उनकी तनख्वाहों से काटा जाता है। फिर गवर्नमेंट जो है जो सोसाइटी होती है उनके उस फंड के ऊपर उनको जो है ना वो इंटरेस्ट वगैरह भी पे करती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ। जो लॉ में दिया गया तरीकाकार है उसके मुताबिक जो है ना वो उनको इंटरेस्ट वगैरह भी जो है ना वो देती है। प्रोविडेंट फंड जो है ना लाजमन बनाया जाता है, लाजमन बनाया जाता है, ठीक है। ये भी तमाम ये बड़े आमतौर पर याद रखें, ये जो रिसोर्स सोसाइटीज होती हैं ये नहीं ये काम करती क्योंकि इनके पास सरमाया नहीं होता। ये जो सोसाइटीज होती है बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, हाउसिंग हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, बेटा वो जो है ना प्रोविडेंट फंड क्रिएट करते हैं क्योंकि वहां पे जो है ना मुलाजमीन की तादाद ज्यादा होती है। वापडा फैसलाबाद है, इसके एम्प्लॉयज जो है ना 300-400 होंगे। इस तरह जो और बड़े बड़े इदारे हैं उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा होते हैं। तो वो सोसाइटी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए जो है ना प्रोविडेंट फंड का जो है ना क्याम अमल में लाया जाता है। प्रोविडेंट फंड इज क्रिएटेड अंडर सेक्शन 41, ठीक है। एक बार रिपीट कर दें सर, ये प्रोविडेंट फंड किस लिए होता है, इसका मकसद क्या है? हाँ इसका मकसद मैंने आपको ये बात बताई है बेटा कि प्रोविडेंट फंड इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज रिलेटेड विद द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। सरकारी मुलाजमों के लिए नहीं होता, सरकारी मुलाजमों के लिए अपना जो है ना फंड क्रिएट करती है गवर्नमेंट। जो सोसाइटी ने मुलाजिम रखे हुए होते हैं, सोसाइटी अपने मुलाजिम को इतनी आसानी से बरतरफ भी नहीं कर सकती। सोसाइटी के जो मुलाजिम है उनके लिए प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया जाता है। वो प्रोविडेंट फंड जो होता है वो सोसाइटी के मुलाजमीन की फलाहो बहबूद के लिए होता है। क्लियर? ये जो है ना इसके लिए याद रखे बेटा, इसके लिए जो है ना कोई खास शरह बयान नहीं की गई लॉ में कि ये इतने % होगा। जैसे रिजर्व फंड मैंने आपको बताया था ना 1/4 और 1/10, ये नहीं, इसमें कोई शरह नहीं ऐसी है। इसमें जो है ना वो जो सोसाइटी के बाई लॉज कहते हैं उसी के मुताबिक जो है ना वो प्रोविडेंट फंड जो है ना क्रिएट कर किया जा सकता है। आगे देखिए बेटा, आगे सेक्शन 42 आखिरी सेक्शन है ये आज के इस चैप्टर का। यहां तक आपके जो है ना चैप्टर 6 पूरे हो जाने आज। ये बेटा है कि कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस
सोसाइटी अपने प्रॉफिट का 20%, कितना 20% से ज्यादा नहीं होता, वो प्रॉफिट का जो 20% है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। किस पर्पस के लिए? चैरिटेबल पर्पस के लिए। मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, 2005 में जल्जला आया। जब 2005 में जल्जला आया तो जितनी भी सोसाइटी थी उन सोसाइटी से कहा गया कि आप जो है ना जल्जला जदगान की मदद करें, उनके लिए कंबल, मेडिसन, टेंट, इस तरह की जो अशिया ना वो फराहम करें। तो हर बड़ी बड़ी सोसाइटी ने इस बात जो है ना वो प्रोवाइड किया। तो सोसाइटी ने कहाँ से प्रोवाइड किया? सोसाइटी के पास फंड थे, वो फंड थे जो सोसाइटी ने सेक्शन 42 के तहत जो है ना क्रिएट किए हुए थे चैरिटेबल पर्पस के लिए। ठीक होगी बात? यस सर। ये जो चैरिटेबल पर्पस है ना, ये मैंने एक पर्पस तो आपको बता दिया, जैसे जल्जला आ गया था, सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए जो ना इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरी बात ये कोऑपरेटिव के मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कोऑपरेटिव का मकसद ये है कि जो कोऑपरेटिव के इदारे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो इदारा है गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज फैसलाबाद है, गवर्नमेंट जो रीजनल कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज बहावलपुर है, उसके लिए उसको भी फंड जो है ना वो अतिया किए जा सकते हैं, ताकि वो उससे अपनी कोई लाइब्रेरी बना लें, कोई जो है ना वो अपने जो है ना किसी हॉस्टल को बना लें, किसी हॉस्टल को रेनोवेट कर लें। ठीक है, वो कोऑपरेटिव पर्पस है उनका। क्लियर होगी बात? समझ आ गई है बात की? सर हॉस्पिटल वगैरह बनवा सकते हैं अपने वो मेंबर्स? हॉस्पिटल वगैरह इसी में आते हैं। हॉस्पिटल हो गए, ये जो है कोई लंगर खाना बना दिया, इस तरह जो है ना। जी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है जनाब। सर अब आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी जी, क्लियर आ रही है आवाज जनाब। हाँ सर, मैं इस क्लास में नया हूँ, तो मैंने पहले मतलब के 5 चैप्टर तो किए नहीं है सर। मुझे बता दें कि मैं कहाँ से कवर कर सकता हूँ? अच्छा, आप ना इस तरह कीजिएगा, पंजाब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 है ना, पहले आप इसको जरा डाउनलोड करें वेबसाइट से ना, पंजाब लॉज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। सर ग्रुप में भी सर मियां शफीक ने शेयर किए हैं। हाँ चले, मियां साहब से कहें वो आपको दोबारा वो शेयर भी कर दें। मैंने मियां साहब से सर कहा था अगर कर दें। सर अगर इनको मैं- नोट्स चाहिए तो मैं इनके साथ, अगर इनको सर नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स शेयर कर लूंगी। तो ये ठीक है, ग्रुप में मैसेज करते हैं तो मैं इनको कर। मैंने रूल्स और ये जो है ना क्या उसे कहते हैं, रूल्स और कोऑपरेटिव लॉ और हिस्ट्री आपके साथ जो है शेयर कर चुका हूँ। अब मुझे मियां साहब ने एक और टास्क दिया है, वो भी मैं विद इन डे और 2 ना वो आपके लिए जो कोऑपरेटिव रिलेटेड ऐसे होगा ना, ऐसे वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो आपको मैं लिख दूंगा, जो कोऑपरेटिव के ऊपर जो है ऐसे वगैरह आ सकता है, वो भी आपके साथ जो है ना वो शेयर करूंगा। तो जो कोऑपरेटिव के जो रिलेटेड ऐसे बन सकते हैं ना, वो भी एक दो 3 जो है ना वो आपको लिख दूंगा। ठीक हो गया बेटा? सर मैं कह रही थी कि अगर आप पास पेपर शेयर कर दें हमारे साथ ग्रुप में तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हम लोग बस पेपर मैं जो ना वो कुछ क्वेश्चन वगैरह जो है ना वो आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये कहना कि जो है ना वो पास पेपर जो है ना वो मेरे पास जो है ना वो तो कोई है नहीं। मैं आपको जो पढ़ाता हूँ ना बेटा, तो मेरे पास याद रखिए ये हिस्ट्री की मैंने मेरे साथ पास 3 बुक्स हैं, ठीक है। फिर पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट मेरे सामने है, नया वाला भी और पुराने वाला भी, अमेंडेड भी और उससे पहले वाला भी। फिर उसके अलावा जो हिस्ट्री के जो है ना नोट्स वगैरह भी जो है ना मैंने जो आपके साथ शेयर किए हुए हैं वो जो है ना मेरे पास हैं, ठीक है। ताहम जो है ना वो आई ट्राई माई बेस्ट टू सर्च दी पास्ट क्वेश्चंस सो दैट आई मे शेयर ऑल दोज विद यू। यस सर, ठीक है। कितने चैप्टर होंगे आज? तो 6 हो गए कंप्लीट। आज चैप्टर जो है ना 6 हो गए हैं मुकम्मल जनाब। सर अभी हिस्ट्री और रूल्स तकरीबन हमने जो है ना वो 60% जो है ना कवर कर लिया है। लेकिन सर अभी हिस्ट्री और रूल्स तो रहते हैं। और बेटा वो भी हो जाने हैं, वो कौन सी मुश्किल है, जब ये हो जाएगा वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर ये एक्ट जो है 1925 वाला है? 25 वाला जनाब, 55 नहीं 25। 25 वाला सर, 25 वाला कह रहा हूँ। हाँ 25 1925। सर जरा वेबसाइट बता दीजिएगा कहाँ से डाउनलोड होगा? पंजाब लॉज की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। अब गूगल पे सर्च करें,
आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर सर। ने सर मेरा एक क्वेश्चन था सेकंड लेक्चर से। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था सेकंड लेक्चर से। जी 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 करें करें। सर उसमें हमने स्पेशल जनरल मीटिंग वाला सेक्शन डिस्कस किया था ना। सेक्शन 13। जी बिल्कुल। मैंने पूछना था जैसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, इनमें इलेक्शंस होते हैं हर 3 साल बाद ना, और एक कमेटी और उसमें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट वो इलेक्ट करते हैं। जी जी। तो जो स्पेशल डिसीजंस लिए जाते हैं इसमें स्पेशल जनरल मीटिंग में, फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ नेम है या मर्ज करना है या डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, वो जो आपने बताया था कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है डिसीजन के लिए, तो वो जो कमेटी इलेक्ट होती है हर 3 साल बाद वो डिसीजन लेती है? नहीं 2/3 जो मेजोरिटी होती है ना वो होती है ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें जो भी बंदा रह रहा है, जितने भी घर हैं, हर एक मेंबर है ना उस सोसाइटी का, तो उनकी मेजोरिटी चाहिए। जी जी उनकी पता है। उसके लिए याद रखें समन करते हैं, तमाम को इश्तेहार देते हैं अखबार में कि जो स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल देखें, इसीलिए 1 माह का टाइम दिया गया कि आपने जो है ना स्पेशल जनरल मीटिंग 1 माह में कॉल करनी है। तो आपने किसी सोसाइटी की मीटिंग कॉल करने के लिए आपने 15 दिन का जो है ना नोटिस लाजमी देना होता है। आप अखबार में इश्तेहार करते हैं तमाम मेंबरान को कि तमाम मेंबरान जो है ना फलां दिन हाजिर हों, फलां दिन आ जाएं, फलां दिन हमने एक मीटिंग रखी हुई है, ये हमारा एजेंडा है, हम उस एजेंडे पर जो है ना बात करना चाहेंगे, उसके ऊपर हमने ये इजलास तलब किया है, उस इजलास में जो है ना वो मंजूरी वगैरह देंगे। समझ आ गई बात की? ओके सर, जितनी में मतलब स्पेशल जनरल मीटिंग्स होंगी उसमें सबको बुलाया जाएगा? जी जी। एनुअल जनरल मीटिंग, स्पेशल जनरल, तमाम मीटिंग, जितनी मीटिंग होती हैं उन तमाम मेंबरान को कॉल किया जाता है। देखें अगर तो सर कमेटी जो ने ये जो कमेटी इलेक्ट होती है हर 3 साल बाद, उसका यही पर्पस नहीं होता कि वो सोसाइटी के जितने भी डिसीजन हैं वो खुद लेंगी? नहीं वो देखिए जो जितने भी डिसीजन सोसाइटी वो लेती है ना, उसने अपने डिसीजन को रेटिफाई करवाना होता है। जो बेसिकली रिपोजिटरी ऑफ पावर्स है ना वो जनरल मीटिंग्स ही हैं, याद रखें सोसाइटीज की। तमाम जो ठीक है। तो इख्तियारात सर हैं, ये कमेटी में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, और ये जो कमेटी 5-6 मेंबर की, वो सारे हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन होता है बाकायदा, जिसमें कास्टिंग वोट कास्ट करते हैं, तो वो इनके पास क्या पावर होती है सर? हाँ ये तमाम देखें ना, ये तमाम इखराजात की मंजूरी लेकर उन कारोबार को उन तमाम को जो है ना करवा सकते हैं। करवाना तो इन्हीं ने होता है ना, सोसाइटी चलानी इन्होंने होती है। ट्रांसफर फीस वगैरह प्लाट की इनके पास जाती है, सारा कुछ प्लाट ट्रांसफर हुआ उसकी फीस इन्होंने ली। सोसाइटी के अफेयर्स जितने भी हैं, सोसाइटी में वर्क करवाना है, रोड कंस्ट्रक्शन करवानी है वो इन्होंने करवानी है, सोसाइटी में स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है वो इन्होंने लगवानी है, सोसाइटी में कोई और जगह खरीदनी है वो इन्होंने करनी मतलब है। मैंने करेंगे ये लोग, अगर और मतलब मैंने ये लोग करेंगे, और अगर डिसीजन होगा स्पेशल या एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें सारे लोग आएंगे? देखें उसकी वजह ये है कि जो सोसाइटी है ना वो कलेक्टिव है। सोसाइटी इन 5 बंदों की मलकियत नहीं है, सोसाइटी तमाम मेंबरान की मलकियत है। मैंने को बताया था कि सोसाइटी इज रन ऑन द प्रिंसिपल्स एनेक्टेड इन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि दोज प्रिंसिपल्स आर डेमोक्रेटिक वेयर ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल राइट। ठीक है सर, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि इलेक्ट भी तो इन्हें यही सारे लोग मिलकर ही करते हैं ना? नहीं इस तरह तो जो है वो फिर करोड़ों रुपए बाद का जाया कर देते हैं। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन था मेरा कि ये जो वलेंशिया हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये जो लाहौर वाली, जी जी सर इसकी मैं हिस्ट्री देख रहा था, तो ये 90s में एक मंजूर अहमद शख्स था, उसने मतलब स्टार्ट की थी, और 2000 में इसकी जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वो मशरक बैंक ने फंडेड की थी ना। तो आपने एक कोऑपरेटिव बैंक बताया था, तो फंड वगैरह तो वो नहीं देते? नहीं वो बैंक से ले भी सकते हैं और बैंक से नहीं भी ले सकते, कोई जरूरी नहीं है। जो मेंबर हैं वो अपने कलेक्टिव फंड भी रिसोर्सेज को जो है ना वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वीक वी विल हैव अ मीटिंग इंशाल्लाह। ओके बेटा, आई एम गोइंग टू लीव नाउ। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।